Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Indio German Vibes und ich Punit begrüße euch ganz herzlich. Unser heutiges Thema ist die temporale Präpositionen. आज का हमारा टॉपिक है die temporale Präpositionen. Die Präpositionen, die eine Auskunft über die Zeit geben, sind temporale Präpositionen. वो prepositions जो कि हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. Auskunft का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन. या तो वो सारे के सारे prepositions जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं, जो समय के बारे में बताते हैं, उनको हम बोलते हैं टेम्पोरल prepositionen. तो इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने इसके साइड पे एक उअर बनाई हुई है, दी उअर, जिससे आपको पता चले और याद रहे कि वर्ड टेम्पोरल जहां पे भी आएगा इसका हमेशा समय के साथ, उअर के साथ लेना देना है. या सो जहां पे भी आपको वर्ड टेम्पोरल आए तो आप याद रखिए वहां पे टाइम के बारे में बात होगी. Außerdem diese Präpositionen, die beantworten die folgenden Fragen. और ये जो prepositions हैं ये किस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, जैसे कि वन, कब, seit wann, कब से, wie lange, कितनी देर या कितनी देर से, wie viel Uhr, कितने बजे. तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टेम्पोरल prepositionen जर्मन में होते हैं. Die temporale Präpositionen sind seit, vor, ab, an, nach, bis, in, für, um, bei, von, bis. Jetzt sehen wir die einzelnen Präpositionen genauer an. अब हम एक एक करके हर Präposition का मतलब समझते हैं. Zuerst sprechen wir über die Präpositionen an und in. जो preposition है ये हमें बताती है कि किस समय पे कोई काम हुआ है. Sie nennt uns die genaue Uhrzeit. तो ये preposition हमें बताती है कि कितने बजे कोई इवेंट या कोई काम हुआ है. या और ये एक accusative Präposition है. Beispiele: 22 Uhr gehe ich ins Bett. Heute habe ich einen Termin 11 Uhr. Die nächste Präposition ist an. Die Präposition an erwähnt uns den Wochentag oder die Tageszeit oder das Datum, wenn etwas passiert ist. ये जो preposition an है ये हमें बताता है कि हफ्ते के किस दिन में, सोमवार को, मंगलवार को, या फिर दिन के किस समय पे, Tageszeit, सुबह, दोपहर, शाम या रात, या फिर किस तारीख को, या कोई इवेंट या कोई चीज हुई है, या कि किस तारीख को. और ये जो preposition है ये एक dative preposition है. Lass uns zusammen die Beispiele sehen. Das erste Beispiel: Am Samstag fahre ich nach Berlin. मैं samstag को बर्लिन जा रहा हूं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें Wochentag बता रहा है कि कब वो बर्लिन जा रहा है. Am Samstag. So वो Wochentag बता रहा है. The day of the week. Tim macht seine Hausaufgaben am Nachmittag. Tim अपना होमवर्क कब करता है? दिन के किस समय में
An welcher Tageszeit? Am Nachmittag. Ja? Und das letzte Beispiel. Am 4. Juni habe ich meinen Geburtstag gefeiert. कि मैंने 4 जून को अपना जन्मदिन मनाया. Am welchen Datum habe ich meinen Geburtstag gefeiert? Am 4. Juni. So, जब भी आपने हफ्ते का दिन बताना है जब कुछ किया जाएगा, या फिर दिन का समय morgen, abend, nachmittag, या फिर डेट बतानी है, तो आप preposition यूज करेंगे an. क्योंकि सारे Wochentag, जो मोनटाग, dienstag, donnerstag, ये सारे के सारे का आर्टिकल der होता है. और meisten Tageszeiten, Abend, Morgen, Nachmittag, ये सबका आर्टिकल der होता है, außer die Nacht, die आर्टिकल die hat. तो इसलिए आपको ज्यादातर ये preposition am की फॉर्म में नजर आएगा, बिकॉज der जो है dative में dem बन जाता है. और am कैसे बना? am बना है am plus dem से. An plus dem ist am. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Präposition in. In. Die Präposition in erwähnt uns den Zeitraum, wenn etwas passiert ist. So it tells us about the period of time in which something has happened. Ja? So, das kann Tage, Wochen, Monate oder Jahren sein. जब भी हम समय की बात दिनों में, हफ्तों में, महीनों में या सालों में करते हैं, तो हम preposition यूज करते हैं in. या फिर हम बात करते हैं कि फ्यूचर में कोई चीज इस इतने समय में आने वाली है या होने वाली है, तब भी हम preposition यूज करते हैं in. या फिर हम किसी मौसम के बारे में बताते हैं कि im Sommer, im Winter, im Frühling, im Herbst, ja, तब भी हम preposition यूज करते हैं in. Zum Beispiel, hat sein Projekt in 2 Monaten fertig gemacht. कि उसने अपना प्रोजेक्ट 2 महीने में खत्म करा. तो कितने पीरियड में उसने खत्म करा? 2 महीने. Also in 2 Monaten. In 3 Wochen schreiben wir einen Deutschtest. कितने टाइम में Deutsch टेस्ट होने वाला है? 3 हफ्तों में. So, in 3 Wochen. Und die Präposition in ist auch eine Dativpräposition. Unsere nächsten Präpositionen sind for, by und nach. सबसे पहले बात करते हैं preposition by की. by preposition यूज किया जाता है जब हम 2 एक्टिविटीज कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं और दोनों एक साथ कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं. कि एक एक्टिविटी के दौरान ही हम एक और एक्टिविटी कर रहे हैं. Zum Beispiel beim Autofahren höre ich oft Musik. कि जब भी मैं कार चलाती हूँ या कार से जाती हूँ तो मैं साथ साथ म्यूजिक सुनती हूँ. या सो एक एक्टिविटी तो है कि कार में जाना है, कार चलाना, और दूसरी है कि म्यूजिक सुनना. सो ये दोनों एक साथ किए जा रहे हैं. या फिर कार चलाने के दौरान मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, तो वहां पे हम preposition यूज करते हैं by. Beim Autofahren höre ich oft Musik. और जब हम कोई काम कर रहे हैं उससे पहले के इवेंट बताने के लिए हम यूज करते हैं preposition for. for. अगर मैं इस टाइमलाइन पे ही कहूं कि इस टाइम पे हम ये काम कर रहे हैं, ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो सारे काम या वो सारे इवेंट्स जो इससे पहले हुए हैं उसको बताने के लिए हम preposition यूज करते हैं for. for, before, इससे पहले. या और बिल्कुल ऐसे ही उन सारी एक्टिविटीज या उन सारी इवेंट्स को बताने के लिए जो इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद होंगे, आफ्टर दैट, तो उसके लिए हम preposition यूज करते हैं nach. nach. या
और ये तीनों के तीनों preposition ये Dative Preposition है. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Beispiele an. Zum Beispiel, vor dem Essen wasche ich meine Hände. कि खाने से पहले मैं अपने हाथ धोती हूँ. या खाने से पहले, फॉर दीन एसन. एसन का आर्टिकल होता है दस, और दस जो है डाटिव में देम बन जाता है, इसलिए यहां पे आ जाता है फॉर दीन एसन. फिर आ जाएगा बाइम एसन sehe ich oft fern. बाइम एसन. अब आप कहेंगे कि बाइम कैसे बना? बाइम बनता है बाय प्लस देम से. So by plus dem ist beim. Ja? So beim Essen sehe ich oft fern. कि खाने के दौरान मैं टीवी देखती हूँ. या उसके बाद nach dem Essen mache ich die Küche sauber. और खाना खाने के बाद मैं किचन साफ करती हूँ. Noch ein Beispiel. Vor der Arbeit frühstücke ich. कि मैं अपने काम पे जाने से पहले, काम से पहले मैं नाश्ता करती हूँ. Bei der Arbeit schreibe ich E-Mails an Kunden. काम के दौरान मैं कस्टमर्स को ईमेल्स लिखती हूँ. Nach der Arbeit kaufe ich ein. और काम के बाद मैं ग्रोसरीज करती हूँ. So that is everything about for, by und nach. Jetzt sprechen wir über die Präposition von bis. Diese Präposition wird benutzt, eine Zeitspanne zu erwähnen. So ये preposition यूज किया जाता है जब हम एक टाइम फ्रेम के बारे में बताना चाहते हैं कि कोई चीज, कोई एक्टिविटी या कोई इवेंट इतने टाइम से इतने टाइम तक चलेगा. सो इतने बजे से इतने बजे तक, या इस दिन से इस दिन तक. कब से कब तक. Ja? Von wann bis wann. Zum Beispiel, von 8 bis 13 Uhr habe ich meinen Deutschkurs. So मेरा Deutsch Kurs कितने से कितने बजे तक है? 8 bis 13 Uhr. तो इसको बताने के लिए हम preposition von और bis यूज करते हैं. von यूज करते हैं जब वो शुरू हो रहा है, और bis जब वो end हो रहा है. Noch ein Beispiel. Ich arbeite von 9 Uhr bis 17 Uhr. Vom 1. April bis 30. April habe ich Ferien. कि मुझे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं. Jetzt kommen wir zur Präposition ab. Ab. Diese Präposition wird benutzt, den Anfangspunkt von einem Ereignis zu erwähnen. Wann hat ein Ereignis angefangen? Also dieser Anfangspunkt zu nennen, benutzen wir die Präposition ab. ये preposition यूज किया जाता है जब हम ये बताना चाहते हो कि कोई इवेंट कब से शुरू होगा, या कोई चीज, कोई एक्टिविटी कब से शुरू होगी. तो उसके लिए हम यूज करते हैं preposition अब. जैसे हमारे पास इंग्लिश में preposition है from, और ये भी एक dative preposition है. Jetzt schauen wir uns die Beispiele an. Das erste Beispiel: Ab nächster Woche gehe ich in Urlaub. अगले हफ्ते से मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ. अब nächster Woche, Woche का आर्टिकल होता है दी, और इसलिए nächste Woche, और वो डाटिव में बन जाएगा nächster Woche. या सो अब nächster Woche gehe ich in Urlaub. मैं अगले हफ्ते से, सो कब से? अगले हफ्ते से. Ab 18 Jahren darf man wählen. 18 साल की उम्र से आपको वोट डालना अलाउड है. सो कब से अलाउड है? अब
18 Jahren, 18 साल की उम्र से. Ja? Ab nächsten Monat fährt dieser Zug nicht mehr. Ab nächsten Monat fährt dieser Zug nicht mehr. अगले महीने से ये ट्रेन और नहीं चलेगी. So कब से? Ab nächsten Monat. So next kommen wir zur Präposition bis. Bis. Die ist eine Dativpräposition und erwähnt uns das Ende von etwas. So ये preposition हमें बताता है कि इस टाइम तक कोई काम या कोई एक्टिविटी हो जाएगी या हो जानी चाहिए. Ja? Zum Beispiel, die Präsentation muss bis morgen fertig sein. कि जो प्रेजेंटेशन है ये कल सुबह तक खत्म हो जानी चाहिए. Wir sammeln das Geld bis nächste Woche. कि हम अगले हफ्ते तक पैसे इकट्ठे कर रहे हैं. Das Bußgeld muss bis Samstag bezahlt werden. कि ये जो चालान है ये आपको सैटरडे तक पे करना है. Ja? Jetzt sprechen wir über die temporale Präposition seit. Seit. Seit Präposition, जिसको हम इंग्लिश में since कहते हैं, कि तब से, कितनी देर से? 2 दिन से, 1 साल से. Since 2 days, seit 2 Tagen, seit einem Jahr. तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये पूछा जाए कि कब से आप ये काम कर रहे हैं या कब से ये इवेंट चल रहा है, कब से ये एक्टिविटी चल रही है, seit wann passiert etwas, उसका आंसर हमेशा प्रेपोजिशन seit से दिया जाता है. कि तब से, 2 दिन से, 2 सालों से, 4 महीनों से. ये प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं जब कोई इवेंट या एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई थी पर अभी तक चल रही है. फॉर एग्जाम्पल, हम कहें कि 2 घंटे से बारिश हो रही है. कि 2 घंटे पहले बारिश शुरू हुई थी पर अभी तक वो हो रही है, तो हम कहेंगे es regnet seit 2 Stunden. Wir schauen uns ein paar Beispiele an. Das erste Beispiel: Tim ist seit 3 Tagen krank. So मतलब टिम जो है पिछले 3 दिन से बीमार है और अभी भी बीमार चल रहा है, अभी भी वो ठीक नहीं हुआ और 3 दिन से बीमार चल रहा है. Zweites Beispiel: Seit 3 Monaten lerne ich Deutsch. कि मैं पिछले 3 महीने से जर्मन पढ़ रही हूँ और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं रुकी नहीं, अभी वो स्टॉप नहीं हुआ प्रोसेस, अभी भी वो चल रहा है. Drittes Beispiel: Seit wann arbeitest du bei Airbus? कि कब से तुम एयरबस कंपनी में काम कर रहे हो, कितनी देर से. Jetzt spreche ich über die temporale Präposition für. जब आप प्रेपोजिशन für एक टेम्पोरल प्रेपोजिशन की जैसे यूज़ करते हैं तो उसका वहाँ पे मतलब होता है कि कोई एक्टिविटी कितनी देर के लिए की जाएगी, कोई इवेंट या कोई भी काम कितनी देर के लिए होगा, तो वहाँ पे हम फिर का यूज़ करते हैं. सो जैसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर हाउ लॉन्ग, या कितनी देर के लिए. और ये एक अकुजाटिव प्रेपोजिशन है. और अब हम कुछ बाइस्पील देख लेते हैं. Ich bleibe in Berlin für 3 Tage. कि मैं 3 दिन के लिए, कितनी देर के लिए? 3 दिन के लिए बर्लिन में रहूंगा. Ich möchte das Buch für eine Woche ausleihen. कि मैं ये बुक 1 हफ्ते के लिए उधार लेना चाहता हूँ. Tim braucht ein Hotel für 2 Tage. टिम को एक होटल की ज़रूरत है, कितनी देर के लिए?
2 दिन के लिए, für 2 Tage. So, das war alles über die temporale Präpositionen und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und auch geholfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.